winter is coming, but its effect has been diminished by the soaring real estate prices in India. And to amplify the heat further, Sony Live has launched its latest version or Indian version of Million Dollar Listing. Million Dollar Listing is an American reality show which showcases the lives of real estate agents who sell high end properties. This is the first time that viewers will get a sneak peek into the lives of these realtors, how luxury real estate works, how the deals are made, how these properties are crafted, and how these realtors behave in the highly competitive market. So today I am euphoric and elated to welcome three guests on our podcast from the show: Mr. Hem Batra, the family man, Ankush Sayal, the deal maker, and Deepthi Malik, the beauty and the brains. So without any further ado, let's dive straight into the conversation. So, I know the journey has been great till now as well, but how's your experience in Million Dollar Listing? How is everything going on? Like, a Million Dollar Listing का फर्स्ट एडिशन है और एक्साइटमेंट मार्केट में भी है, लोगों में भी है. मेरे बहुत सारे दोस्त जो रियल एस्टेट से रिलेटेड नहीं है वो भी देख रहे हैं, तो काफी बज है मार्केट में. बट हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ द शो? So, to be honest, the only word that comes to my mind when I think about $1 million listing is grateful. Because अगर आप सोचो, ये 2 times Emmy nominated Indian adaptation of $1 million listing, which has garnered worldwide fame. और जब कोई भी फर्स्ट सीजन होता है ना, वो हमेशा लाइक एवरीबडी रिमेम्बर्स द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन मून. सेकंड को किसी को याद ही नहीं था. आज जैसे पहला प्यार याद होता है. हाँ, एग्जैक्टली. आपका कोई पहला प्यार जरूर याद बिल्कुल. तो मैंने पहली शादी नहीं बोला. हाँ, that would controversial हो जाता है. It might have been controversial. Exactly. तो बस यही है कि जब लगता है कि फर्स्ट पायनियर सीजन के V6 are the hand picked realtors, it feels very special because we will be the torch bearers of real estate in India, not only Delhi NCR. मुझे लगता है we are representing the entire landscape of Indian real estate. The feeling is great. नो डाउट कि कई बार लगता है चैलेंजेस है, सब कुछ है, जैसे रियल एस्टेट की लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, हर लाइफ में ना, मतलब हर फील्ड में चैलेंजेस होते हैं. सो इज द शो. बट हमेशा मतलब मुझे लगता है ना कि दिस इज सुप्रीमली एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी. आई मीन द फीलिंग इज ओवरवेलमिंग. एंड दोबारा भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमेशा हम हाँ बोलेंगे. द एक्सपीरियंस हैव बीन वंडरफुल. और कैसे लोगों का भी एक तरीके से रिस्पांस चेंज हुआ होगा. पहले से यू आर ऑलरेडी फेमस थ्रू सोशल मीडिया, आई नो, बट क्या होता है कि एकदम से और लोग जानना शुरू हो जाते हैं. पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट, वो भी जानना शुरू हो जाते हैं. बिकॉज़ अब $1 million लिस्टिंग भी है, वो है रियल एस्टेट के बारे में, बट वो हमारी फैमिली लाइफ भी दिखा रही है कि लाइक माय पार्टनर हु इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ बिहाइंड मी. देखो, हमेशा ना ऐसे कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, व्हिच इज वेरी नेचुरल आल्सो, बिकॉज़ विमेन का उनका जो ट्रेट होता है ना, वो केयर होता है, केयरिंग होता है, गिविंग होता है. सो दे आर अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, उनका इनहेरेंट ट्रेट ऐसा होता है. बट when a man is standing behind a successful woman, that really matters, and my husband has played that instrumental role, and my father also, because he is the coach and mentor in my life. Great. I mean, I'm somebody who is an equalist. Normally लोग feminist और patriarch की बात करते हैं, तो I'm an equalist, so I can understand. My wife supports me a lot. तो अब एक बार हेम जी की तरफ आते हैं, बिकॉज आपका जो कैरेक्टर है, मतलब ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज गॉट समथिंग जिसमें आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेट करते हो. बट आपसे सबसे ज्यादा रिलेट मैंने ये किया कि मेरे साथ में भी ऐसा ही होता है कि एकदम से फोन आया घर से, तो बस चेंज हो गया सब कुछ, दरवाजा बदल गया. एक वो जो रिप्रेजेंटेशन होती है कि एक रियल्टर की कि यू हैव अ फैमिली, यू हैव a successful business, and then you are maintaining yourself as well. So please share your experience on the show. देखो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. आप दुनिया फतेह कर सकते हो, बट अगर आप वो दुनिया फतेह करने के बाद, घर जाने के बाद आपके पास कोई वो चीज उसी खुशी के साथ शेयर करने के लिए ना हो, तो आपका सब कुछ करा हुआ बेकार है. ये मेरा मानना है. टू मेंटेन दैट बैलेंस, अब आपको ऐसा नहीं है कि जब आप अवेलेबल हो उसी टाइम पे वो लोग भी अवेलेबल होने चाहिए. तो जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी टाइम मिलता है, तो वो फैमिली को वो ड्यू टाइम, वो 5 मिनट, वो 2 मिनट की कॉल, वो केयरिंग मैसेज, वो जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ना, वो करनी चाहिए. ना सिर्फ हमारे प्रोफेशन में, वो हर एक उसमें करनी चाहिए टू शो
बहुत छोटी सी जिंदगी है, ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि जब मौका मिले बोल दो कि हाँ जी आई केयर फॉर यू, तो दैट इज देयर। और उस चीज के सपोर्ट की वजह से जब वो रियलाइज करते हैं कि ठीक है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये अगर ध्यान दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, तो उतनी ही रिस्पेक्ट आपको मिलती है, उतना सपोर्ट आपको और बेटर मिलना शुरू होता है। इट इज अ टू वे प्रोसेस। करेक्ट। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, फिर आपके पास और मोटिवेशन मिल जाते हैं कि यू हैव टू डू समथिंग मोर बेटर फॉर देम। आदमी अपने लिए क्या कर रहा है? आदमी इज ओनली डूइंग इट फॉर द फैमिली, द हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। So that becomes a motivating factor as well कि हाँ, और फैमिली ठीक है तो सब ठीक है, and then you can probably work better, मेरे को तो यही लगता है। एग्जैक्टली सर, वाइफ खुश लाइफ खुश। मैं भी वही है कि रोज सुबह व्हाट कैन आई डू फॉर यू, एक डायरी लेके बैठ जाता हूँ, आज क्या करना है। एक फनी इंसिडेंट है, मेरी वाइफ सुबह सुबह पूछती है कि आज तुम्हारा क्या प्लान है, मतलब सो दैट शी कैन मिक्स एवरीथिंग विद मी। तो मैं कहता हूँ तू बता दे क्या तेरा क्या प्लान है, मैं उस हिसाब से प्लान बना लूंगा। तो इसलिए रिलेट कर पाया। एंड देखो सर, उनके सपोर्ट के बिना ना कुछ भी कर पाना, Nothing is आपके और possible. मेरे लिए या अंकुश के लिए, किसी के लिए भी, अगर पार्टनर आपका सपोर्टिव नहीं होगा इस ट्रेड में, बिकॉज ये ट्रेड टाइम बाउंडेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुबह 10 बजे कॉल शुरू होगा और 5 बजे खत्म हो जाएगा। इसमें सुबह 7 बजे भी कॉल बचता है और रात को 12 बजे भी कॉल आता है क्लाइंट का। क्लाइंट के पास टाइम फ्रेम वाइज कोई वो है नहीं उसमें, और आप हर कॉल को इसी सोच से उठाते हो कि यार ये मिस करके कहीं वही क्लाइंट ना हो जो डील ले जाता। तो उस सोच को आप चेंज नहीं कर सकते। तो उस सपोर्ट फैक्टर, उस अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है, और बिना उनके अंडरस्टैंडिंग के तो हम चल ही नहीं सकते, बिकॉज यू हैव टू सी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। आज आप आपके साथ बैठे हैं, अभी इस टाइम पे अगर उनको किसी चीज की जरूरत है तो दे विल अंडरस्टैंड कि यहाँ बैठे हैं और ये जरूरी है, इसी वजह से ये काम कर रहे हैं अभी हम। तो वो एक नॉन बाइंडिंग फैक्टर है हमारे उसमें, कि उसको आपको थोड़ा सा भी डाइल्यूट नहीं कर सकते। मेरे केस में तो बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल ये चीज तो इम्पोर्टेंट है। और अब शो पे जैसे यू हैव अ डॉटर एज वेल, अब वो भी, उसके भी जो फ्रेंड्स हैं वो देखते होंगे कि डैड, इसके डैड जो है वो शो पे है, तो हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर यू? सर सबसे बड़ा चेंज जो, आफ्टर लुकिंग एट हर, आफ्टर लुकिंग एट हिम, आफ्टर लुकिंग एट द होल कास्ट, इमेजिन मेरी 17 साल की डॉटर कह रही है कि आपके प्रोफेशन के अंदर इतना सब कुछ होता है, इवन आई वांट टू जॉइन यू। जो ऑब्वियसली पहले कभी हम में से कभी किसी ने अपने बच्चे को नहीं बोला था पहले कि यार यू आल्सो कम एंड बिकम लाइक दिस। करेक्ट, रियल एस्टेट वाज नॉट कूल, नाउ इट हैज बिकम कूल। Yeah, it has definitely. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, देयर इज अ प्रेशर ऑल्सो, देयर इज दैट एड्रेनलिन रश ऑल्सो कि ये क्लोज करना है काम। तो जो यंगस्टर्स चाहते हैं कि लाइफ में होना चाहिए समथिंग एक्साइटिंग, दिस प्रोफेशन हैज एवरीथिंग। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट रही इस चीज में। ग्रेट ग्रेट। एंड अंकुश, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑन द शो? मतलब आप, मेरे को पता है, मतलब आप लिंक्डइन पे काफी पॉपुलर हैं और काफी एक्टिव हैं, द अदर सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम एंड योर यूट्यूब, बट आई नो यू वर्कड इन JLL, तो मैं वो काफी टाइम तक कॉर्पोरेट लीजिंग करता रहा, तो यूजुअली एक सिस्टम बन जाता है बिकॉज यू आर मेजरली इनटू B2B business, तो उसमें LinkedIn becomes a more effective medium for communicating with the clients. But still you are pretty famous over there as well. I've seen your profile and I've gone through it. But how life has changed for you in terms of the show, being on the show, और कैसा नया excitement क्या है, और इसके basis पे क्या लगता है आगे कैसे things will unfold? See, going back to where we started our journey, right? As a real estate, जिसको जुनून है कुछ काम करने का, real estate. Seeing from the eyes of my father, who was already in real estate Yes. for 40 years. Seeing that करना यही है, करना कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करनी है, सिविल इंजीनियरिंग करनी है, घुसे कि अब डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट करते करते सीखा कि नहीं यार, डील स्ट्रक्चरिंग में जो मजा है ना, वो ऑपरेशंस के बिजनेस में उतना मजा नहीं है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ अ कस्टमर एंड अ पर्सन हु वांट्स टू सेल। Then that was a journey started into an IPC world altogether. JLL के साथ काम किया. You get to know what are the systems and processes when it comes to deal structuring. So पूरी साइकिल करने के बाद जब अपनी पहली एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर आप बिजनेस में घुसते हो, आप उस हर बेटर चीज को अडेप्ट करके अपने सिस्टम में लाते हो और करते हो. Initial 2-3 years was a struggle. We created different business arms. We got into residential, commercial, hospitality, retail. हर एक में एक स्पेशलाइजेशन चाहिए जो हमने सीखी all through the while. We know how difficult it was and challenging it was between the customers, dealing with them. Deal होते 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 हाथ से छूट के चली जाती है. जब MDL आया,
एंड एमडीएल को हमने ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म देखा है पहले, यूएस में देखा है, आई थिंक लास्ट ईयर दुबई में भी अब एमडीएल आया है, एंड दुबई मार्केट इज अ फ्लैम्बॉयंट मार्केट. इंडिया को अगर आप किसी ग्लोबल स्केल पे ले जा सकते हो, दिस वाज द प्लेटफॉर्म. एंड क्योंकि एमडीएल ने सोचा कि इंडिया में करना है, दैट मींस देयर इज पोटेंशियल. Yes. And we were actually very grateful that we were the chosen ones as the initial torchbearers, as she positively highlighted, to be part of the show, because सबसे पहला सीजन करना मेरे अकॉर्डिंग सबसे डिफिकल्ट है. आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर एक पब्लिक शो क्रिएट कर रहे हैं which has been a controversial sector Yes. for the last 2 decades. Yeah. And it's very different from any other market Yeah. in the world. मैं वैसे भी बोलता हूँ कि India is a riddle wrapped in an enigma. Look, it's very difficult to understand the customer psyche, and then you've got different systems altogether, or unconventional industry. It was not so cool at that point of time. Yeah. So this is, I think, an initiative of making that as cool, changing the perception of the audience. Yeah. And personally, before this, you're very right. I was never active on social media. I'm still not very active. Like him bhai or her, they are like the stars on social media, Instagram platform. I would hardly have 500, 600 followers. That too, I'm non-active member. But LinkedIn was my medium of giving my communication to the right clients at the right time. And after the show, I get requests on Instagram. And now I've like, so these many people are approaching you, you know, let's try and materialize or guide them, whatever they need, however they need. So now I'm working backward to create the system in order to help them if they have questions, to get them answers, to guide them, to convert them into transactions. So I feel $1 Million Listing is playing a very pivotal role from transitioning the real estate sector from unorganized or uncool or uncouth or crude, ठीक है, to make it at very organized or cool also. Like I'm sure like Haim's daughter would love to be part of it. Even my husband joined it, real estate की देखा कि wow, this is so cool. Like I want to be a realtor too. So he helps me with content creation. तो मुझे लगता है जो भी कोई ये देखने वाला है ना, at least एक बार तो ना try करेगा या attempt करेगा कि यार I have to be on the other side now. And to add on to it, अभी तक there were different ways of doing business. Yeah. ये देख के लगेगा what are the right ways of doing business, क्योंकि ये धंधा भी आप पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं. Correct. और करना ही चाहिए जी. Because it is इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक इंटेग्रिटी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं. because it involves a lot of your investment, hard earned and hardly saved money, I feel. तो यहाँ से एक और सवाल निकल के आता है कॉन्वर्सेशन से कि अब इस शो से बहुत सारे यंगस्टर्स और बहुत लोग जो है ना कोशिश करेंगे कि इस शो पे आए. तो व्हाट इज योर एडवाइस टू दोस गाइस कि क्या व्हाट इट टेक्स टू बी ऑन दैट शो? Yeah, please go ahead. नहीं, I think any one of us would not have a right answer to that. I think it is more like more of a character kind of a thing that you have it in you. आप बहुत अच्छे से अच्छा काम कर सकते हो, कितनी इंटेग्रिटी के साथ वो काम कर सकते हो और किस तरीके से लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे. आई थिंक दैट वुड बी द राइट वे ऑफ पुटिंग इट अक्रॉस. आप आई थिंक सबसे ज्यादा फेमस हो सकते हो इंस्टाग्राम पे, बट वो क्राइटेरिया नहीं है इसका. आप यूट्यूब पे मिलियन फॉलोअर्स हो सकते हैं, बट वो क्राइटेरिया नहीं है इसका. इट इज अबाउट यू एज अ पर्सन कि कितना शिद्दत से आप अपना काम करते हो. आई थिंक दैट इज द राइट वर्ड. Perseverance, passion, Determination, innovation. consistency. Yes, exactly. Yeah. See, you know, there are a lot of things to learn from this show. हम करते करते उस जर्नी में ये फील कर रहे थे कि अगर हमें गाइड करने के लिए कोई होता इस बिजनेस में, आप कोई टेक्निकल नॉलेज लगा लीजिए, नहीं चाहिए आपको. यू कैन एंटर, यू मे ऑल्सो डू द बिजनेस, योर वाइफ मे ऑल्सो डू द बिजनेस. आपको इसमें चाहिए करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, मार्केट रिसर्च, राइट अप्रोच. अब ये राइट अप्रोच क्या होती है, स्किल सेट क्या होता है, हाउ टू नेगोशिएट अ डील, हाउ टू गिव कंफर्ट टू योर कस्टमर. You know, those things, if we had a show like this in our time when we were learning, we were on the learning curve, this would have helped us grow. It could have been a guide. It could have been a guide. Guide to real estate. Because real estate पे ना आज तक कोई गाइड बनी थी, ना कोई एक कोर्स है. अब धीरे धीरे लोग अडाप्ट कर रहे हैं. Royal Institute of Chartered Surveyors is doing a course on MBA in real estate. It is just getting introduced. You also did a course in construction, right? In US. Yeah. Yes. So I did my civil engineering from India and then went to Emmy Rinker School of Building Construction, University of Florida, for my construction management. You know, popularity just hits. Popularity just hits, but हमें हमेशा सिखाया जाता है, no matter that hits, be on the ground, because that's the reality. Humility is the best trait one can have. It is the biggest characteristic of a human being. So real estate में तो you have to stay grounded. I know 15 साल में
I have seen people who were at the top और आज वो कहीं नहीं है। तो वो इंटेग्रिटी और ह्यूमिलिटी, आपसे मैं ये अब इस पे आपसे एक क्वेश्चन पे आने वाला था, आप इसी में आंसर दीजिएगा। सी, सो यू आर द किंग ऑफ साउथ दिल्ली फ्लोर्स, सो नाउ यू केम टू गुड़गांव एज वेल, यू स्टार्टेड वर्किंग इन गुड़गांव प्रॉपर्टीज। सो वैसे तो हर मार्केट, हर सेक्टर में बोलूंगा, किसी एक एरिया में सेक्टर की भी थोड़ी थोड़ी नुआंसेस डिफरेंट होती हैं, बेसिक नीड्स सेम रहती हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू आर फीलिंग which is kind of a transition or new learning? What is it? पीछे की लर्निंग क्या काम आ रही है, मतलब एनीथिंग अबाउट दैट? पीछे की लर्निंग एक बहुत सिंपल चीज है। किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर आप ये ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, मैंने कहा उस बारे में मैं सोच ही नहीं सकता, बिकॉज कुछ और करना आता ही नहीं है। तो ये तो मैं आंख बंद करके भी कर सकता हूँ, रात को सोते हुए भी कर सकता हूँ। तो अब वो लर्निंग वाली जहां तक बात है, कुछ एक्सक्लूसिव लिस्टिंग ही होंगी जिसपे मैं काम करना पसंद करूंगा, बिकॉज अगेन जैसे हम बात करते हैं कि घर वो जिसमें मैं खुद को इमेजिन कर सकता हूँ रहने के लिए, दैट विल बी द लिस्टिंग दैट आई वांट टू पुट फॉर माय क्लाइंट्स। अगर मुझे वो घर पसंद नहीं आया या मुझे उसमें कोई ऐसी चीज लग रही है, तो इसीलिए नहीं जाऊंगा सिर्फ उस चीज को सेल ऑफ करने के लिए कि वो बेचना है। उसके लिए तो बहुत सारे लोग हैं, बट इट हैज टू बी वेरी एक्सक्लूसिव फॉर मी टू डू दिस। साउथ दिल्ली ने मुझे ये सिखाया कि अगर आपने अपने लिए एक निश क्रिएट करनी है, एक सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट डिसाइड करना है कि आप इसी तरीके के क्लाइंटल को हैंडल करना पसंद करोगे, तो उसी तरीके का ही क्लाइंटल आपको अप्रोच करेगा। तो वो एक निश जरूर क्रिएट करनी चाहिए हर आदमी को अपने लिए, जो मैंने साउथ दिल्ली में करी है। और वही मेरा टारगेट भी होगा कि गुड़गांव में भी वो ट्रांजैक्शंस जो ऑफ कोर्स समथिंग एक्सक्लूसिव, समथिंग यूनिक, समथिंग दैट एवरीबडी वुड लव टू मेक देयर होम, वो करना मेरा पहली प्रायोरिटी। आपका पॉइंट आई रियली लव्ड इट, बिकॉज मैं भी जब यूजुअली ट्रांजैक्शंस, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को देखने जाता हूं, तो मेरा आई एम समबडी हु बिलीव्स कि फोकस शुड बी ऑन द एंड यूजर, ऑन द कस्टमर। लोग ना बेचने से पहले बात करना शुरू कर देते हैं कि आपका इतना अप्रिसिएशन हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका इतने पैसे कमा लोगे। मैं कहता हूं कि कोर क्या है? कोर तो एंड यूजर है ना। आप बेचोगे तो किसी एंड यूजर को ही बेचोगे ना, आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो। तो मेरे को आई रियली लव दैट नैरेटिव कि अगर मैं खरीद सकता हूं तो मैं बेच सकता हूं। कन्विक्शन भी वहीं से। बिल्कुल 100%। और वो नजर आती है आपकी हर चीज में बात करने के तरीके में। द क्लाइंट वुड फील दैट थ्रू योर वॉइस। जरूरी नहीं है कि आप उसको सारे पॉइंटर्स बताओगे, सब यूएसपीज बताओगे तब वो जाके कन्विंस होंगे। अगर आप उनको 10 चीजें भी उस घर के बारे में उस कन्विक्शन के साथ बता रहे हो जो आपने खुद के लिए फील करी है कि यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, यहाँ कॉफी टेबल लगेगी, all those things matter, क्योंकि emotion plays a very big role in our industry. That's the biggest thing that plays. Exactly. It's all about Your question, what you asked him also, the fact that now you're entering Gurgaon, you know, what you need to keep in mind and what you're doing, because these are the exclusive listings that he's focusing on. I would turn this question into the other side. गुड़गांव से जब आप दिल्ली जाएंगे ना, दिल्ली is a different skill set requirement, because where he deals, he is not dealing with a typical seller. वहां पे लेगेसीज इन्वॉल्व होती हैं, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है, ईगोज इन्वॉल्व होती हैं। इन तीनों का जो संतुलन है, उसको अगर मेंटेन नहीं किया तो डील तो गई हाथ से। चाहे आपके पास जितनी भी कन्विक्शन हो, आपको जितना भी घर पसंद हो, बट यू हैव टू डू दैट बैलेंसिंग एक्ट। दैट्स वेयर द डील गेट्स सक्सेस। बिल्कुल, ये संतुलन वाली बात से मैं यूजुअली कहता हूं, जैसे हम लोग टीम में भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर, मतलब नॉर्मली क्या है कि सी, आपको नॉलेज तो है ही नंबर्स की, फाइनेंशियल्स की, सारी चीजों की, बट इफ यू कैन सेटल द ईगो, द डील इज थ्रू। कंफर्ट लेवल। resale में it's all about ego clashes, so you have to manage वही ना sellers के expectations और buyer के requirements में you have to find a sweet spot. हाँ, बल्कि ईगो जो है एक रॉन्ग वर्ड है, मैं कहूंगा वो संतुलन वाली बात, वो होता है ना कि द मोर पीपल यू मीट द मोर यू लर्न। तो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। अब किसी भी चीज में बैलेंस हल्का सा ऊपर नीचे करके देखो, आपको एडवर्स इफेक्ट मिल जाएंगे। नमक ज्यादा होगा तब भी, और मीठा ज्यादा होगा तब भी। नमक ज्यादा से तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैं वही कहने वाला था, नमक वाली बात। वो कहते हैं ना वो मूवीज में कौन सी में, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। True. वो वही है कि आपकी मोट है अपनी सबकी, कि आपकी क्या स्पेशलिटी है। आपकी कहीं ना आपकी वो पर्सनालिटी का एक कोई ना कोई ट्रेट होता है, जिस चीज को देख के आदमी कहता है कि यार ये चीज पसंद है इस आदमी में। दैट कुड बी एनीथिंग, दैट कुड बी द वे यू ड्रेस अप, दैट कुड बी द वे यू टॉक, दैट कुड बी द वे you conduct your business, that could be anything.
और आप वो जहां उसको थोड़ा सा भी चेंज करने की कोशिश करोगे ना, वो इतना नया 9 दिन पुराना 100 दिन वो आ जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत सारे लोग आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी स्ट्रगल्स के बारे में, इफ देयर वर एनी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी मुझे पॉडकास्ट करते रहे, कहते हैं ऐसा कोई स्ट्रगल वाला था नहीं यार, मैं शुरू से ही लेड बैक था और सब एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू द प्लेस, बट यस आई वाज हार्ड वर्किंग। तो आपकी जो लाइफ की स्टोरी है, हिस्ट्री है, शो पे तो देख ही रहे, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, हाउ इट ऑल स्टार्टेड एज ए यंग गाय, मतलब जैसे आप अपने छोटे भाई को बता रहे होते। सर कहानी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन मुझे था कि मेरे को अपनी पहली जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी, और वो एग्जैक्टली 21 दिन बाद था व्हेन माय फादर पास्ड अवे, एंड आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, बट जैसी ऊपर वाले की मर्जी, बट आई जॉइन माय फर्स्ट जॉब, और वहां से कहते हैं हर चीज का कोई ना कोई कनेक्शन बनता हुआ चला जाता है। तो उस जॉब से द नेक्स्ट जॉब, उस जॉब से द नेक्स्ट जॉब, एंड फिर हम पहुंचे कॉर्पोरेट में, जहां पे हम 10 साल के लिए एग्जैक्टली फॉर 10 इयर्स आई वाज वर्किंग द सेम कंपनी इटसेल्फ। आफ्टर दैट वहां मेरी मुलाकात हुई मेरी अर्धांगिनी इशिका जी से, और ये धीरे धीरे पता लगा कि अब इस चीज के दौरान ये वो राइट पार्टनर हैं जिनके साथ आप आगे अपनी जिंदगी बिताना चाहेंगे। उनके फादर ऑलरेडी इस प्रोफेशन के अंदर पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी कि यार कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दो और ज्वाइन दिस बिजनेस, दिस बिजनेस इज कंपैरेटिवली इज गॉट मोर फ्रूटफुल, मोर मनी इन दिस, बट टू एन एक्सटेंट वो होता है ना कि आप हर चीज में पहले सोचना चाहते हो कि क्या मैं ये राइट डिसीजन ले रहा हूँ, नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब एक ऐसी चीज है कि आप एक ऐसा फंदा कह लीजिए कि बहुत आसानी से छूटेगा नहीं आपसे, क्योंकि यहाँ पानी में गहराई कितनी है अभी पता नहीं था। तो कुछ साल तो डबल शिफ्ट काम करा कि दिन में ये चीज सीख रहे हैं और इवनिंग शिफ्ट्स में कन्वर्ट करा अपने काम को, और उस तरीके से करते हुए तो हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा रहा है सीखने के लिए, कभी पीछे हटने की कोई सिचुएशन आने ही नहीं दी। बट वहां से फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, देयर वाज नो लुकिंग बैक, बिकॉज एक टाइम ऐसा भी था कि अब यहाँ से अब कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं, बट मुझको वो इंटरेस्ट कभी वैसा बना नहीं, बिकॉज जब आप अपने दिन की शुरुआत किसी एक ऐसे क्लाइंट के साथ बात करके कर सकते हो जो 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ की कंपनी रन करता है, और वहीं पे आपको दिन की शुरुआत करनी है एक ठेकेदार से बात करके कि आज सुबह ईंटें पहुंची या नहीं पहुंची, तो आई चोज द फर्स्ट वन फॉर श्योर, यार ठीक है ये मैं हूं, ये मेरे काम करने का तरीका है, और एग्जैक्टली वो। तो यही लाइफ की स्टोरी रही कि वो स्ट्रगल करते 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 कर एक सीढ़ी बाय सीढ़ी आगे पहुंचे, और उसी के दौरान ये सारी चीजें सीखने को भी मिली कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से लोगों की मैनरिज्म्स को आप हैंडल कर सकते हो व्हाइल डूइंग अ ट्रांजैक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज एक्सपीरियंस से आएगी वो कहीं पढ़ाई करने से नहीं आ सकती, वो एक्सपीरियंस से ही आएगी। तो ये लाइफ की स्टोरी थोड़ा आप कह सकते हो कि पूरी फिल्मी है, बट हाँ ये सच्चाई है मेरे उसमें। तो एक क्वेश्चन मैं सबसे ही पूछता हूं, मैं आप सभी से पूछूंगा, व्हाट वुड यू एडवाइस अ यंग हेम बत्रा एज अ लर्निंग, कि आज मैं समझा सकूं, इफ आई हैव अ टाइम मशीन इन प्लेस, तो मैं जाके ये बता दूं कि ये नहीं ये कर, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू अ यंग हेम बत्रा? वो 10 साल कॉर्पोरेट में खराब नहीं करने चाहिए थे, बिकॉज जिस दिन ये प्रोफेशन 100% उस पर ज्वाइन करा था, ये 1 महीने में 2 महीने में रियलाइज हो गया था कि ये 10 साल पीछे अगर जाके अगर उसको चेंज कर सकते होते, तो क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट ऐसी है कि वो अपने आप में इवॉल्व होती हुई चली जाती है। प्राइस के बारे में बात करें, प्रोडक्ट के बारे में बात करें, सर्विसेज के बारे में बात करें, बट आप जितना जल्दी शुरू कर सकते हो, द बेस्ट डे टू स्टार्ट दिस वाज यस्टरडे। दैट वे। ये इस पूरे उसका एक एक सेट वो है। तो आज भी कोई ये सोच रहा है कि मैं करूंगा, 2 महीने गुजर जाने दो यार, ये इसके बाद सोचता हूँ इसके करने की, द बेस्ट डे टू स्टार्ट वाज यस्टरडे। ग्रेट, ग्रेट। सो नाउ आई वुड मूव टू अंकुश। तो अंकुश, टेल मी अबाउट योर लाइफ स्टोरी एज वेल। बाकी आपने बहुत छोटे में खत्म कर दिया, जैम अ फ्यू वर्ड्स, बट ग्रेटर इम्पैक्ट, बट मतलब मजा आ रहा था मुझे सुनने में, लग रहा था कि थोड़ी देर और कंटिन्यू रहे, बट सर कहानी के कुछ जिसे कहते हैं ना पात्र छुपाए भी जाने चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, एक 1-to-1 पॉडकास्ट करेंगे ना तो सारे पात्र निकाले जाएंगे, तो वो भी करेंगे। तो नाउ अंकुश, आप थोड़ा सा बताइए अपनी लाइफ जर्नी के बारे में। हाउ आपका, मैंने देखा तो है ऑफ कोर्स, बट
we're gonna let it come from the horse's mouth. So it's been very simple. Coming from a middle class family, father साहब हमेशा real estate में रहे हैं, and that too as a service oriented industry, never got into business. 40 साल का horizon देखा उन्होंने real estate का उस टाइम से जब real estate एक different तरीके से किया जाता था और उसकी corporatization होके evolution हुआ है और जो आज real estate है. As a kid, आप हमेशा ये चाहेंगे कि you want to become like your idol, and my father was my idol. तो कभी ऐसा हुआ कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे मेरे को याद है नेहरू प्लेस, पीकाजी कामा प्लेस में पोटा कैबिन में बैठे हैं, तो मैं उनके साथ चला गया पोटा कैबिन में, खिड़की से देख के यार बिल्डिंग, मेरे को अपना नाम चाहिए बिल्डिंग पे, वो कैसे होता है. तो मैंने उन्हीं से इंक्वायर करना शुरू किया. वो पूछते थे क्या करना चाहते हो, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को आप जैसा काम करना है. तो कहते थे कि करोगे कैसे, मैंने कहा वही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, करूँ कैसे, तुम और कुछ कर लेना, ऑलरेडी सिविल इंजीनियर है, तू सिविल इंजीनियरिंग करके क्या करेगा. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी, I went for construction management. वापस आया तब लगा कि सी आई एम ऑलरेडी वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे रियल एस्टेट की बेसिक नॉलेज घर पे मिल रही है. बट देन ही न्यू वन थिंग कि इतना इजी नहीं करने वाले. सबसे पहला टास्क मेरा था कि आप ऑफिस आके गाइडेंस नहीं लेंगे, आप पटवारी के घर पे बैठो जाके और आपने ततीमा कटवा के आना है जमीन का. कैसे करोगे, ऑन ग्राउंड नॉलेज. इट टुक मी 4 months टू गेट वन ततीमा, और वो काम कैसे किया जाता है वो ग्राउंड पे बैठ के पता चलता है. Then I understood business planning कैसे की जाती है, feasibility analysis कैसे किया जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले उस प्रोजेक्ट की एनालिसिस कैसे करते हो. जिस टाइम पे रेरा नहीं था, उस टाइम पे जो मेरे फादर की प्रीवियस कंपनी रही है अल्फा जी कॉर्प, दैट वाज द फर्स्ट एफडीआई रियल एस्टेट कंपनी. एस्क्रो मैकेनिज्म रेरा ने आज इंट्रोड्यूस किया है. 2001 में वो रेरा काउंटिंग के थ्रू प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते थे. तो वो ट्रांसपेरेंसी कैसे रखनी है, बिजनेस के फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आई लर्नड ऑन द साइड while I was there. Training करी, as a developer काम किया, and then after that I got the opportunity to work with JLL. JLL के अंदर एक full horizon window मिली मुझे on IPC level, international property consultants कैसे काम करते हैं. Then I found the missing link. कि एक तो काम आपके brokers और consultants करते हैं उस तरीके से जो बड़े regional level पे होता है. Commissions जहाँ पे होती हैं, primary sales करनी है focus. Actual customer को जरूरत है एक guidance की. वो guidance IPC नहीं देख सकती because they are concerned about their global mandates. You have to bridge this gap, create a boutique real estate advisory firm जो residential, commercial और बाकी spheres of real estate के अंदर target कर पाए. And that's how the journey started. तो मतलब a flavor of the global mechanism with the local touch. That is very important to succeed. Cool. Local, yes. Yeah. I That's always tell people that they ask me क्या करोगे, मतलब international property consultants बहुत हैं. मैंने कहा I also want to create IPC. But Indian property consultant. IPC should not stand for international property. इंडियन प्रॉपर्टी कंसल्ट. आज से यही चलेगा. मेरे जितने भी आईपीसी के दोस्त हैं, मैंने कहा तुम भी लोकल ही हो. आज से इंडियन प्रॉपर्टी कंसल्ट. Trademark done. So वही है that passion and जुनून जिसको हम बात करते हैं, and that's why I call everyone it's जुनून का धुंधा. अब दीप्ति पे चलते हैं कि वो लोग मेरे को कह रहे हैं मैं इक्वलिस्ट नहीं हूँ, बट मैं हूँ. बट नेचुरली जो है, अब आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जरूर जानना चाहूंगा. लोग सोशल मीडिया के थ्रू तो जान ही रहे हैं, यू आर वेरी एक्टिव, जिम जा रहे हो, कैफे जा रहे हो, वो भी जान रहे हैं, बट समथिंग अबाउट द हिस्ट्री. या नहीं, एक्चुअली आपने जब बोला ना जिम की बात, बिकॉज मुझे लगता है ना बैलेंस करना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत जरूरी है. अपनी पर्सनल लाइफ में सिर्फ अपने बारे में भी सोचो ना, तो मुझे लगता है वर्कआउट को भी उतना ही समय, मतलब मुझे लगता है मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं कुछ काम कर पाऊंगी प्रोडक्टिवली. तो चाहे कुछ दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे जिम जाना है तो जाना है, मुझे रनिंग के लिए जाना है, और मुझे अपनी एक कप ऑफ कॉफी एक अच्छे से कैफे में जरूर चाहिए. दैट इज माई डेली लाइफ. और अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो बहुत ही ना वाइब्रेंट और कलरफुल हिस्ट्री रही है. मतलब कि मैं अलग अलग जगह जाके पढ़ी हूँ. 16 years ऑफ माई लाइफ मैं घर से दूर रह के बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ी हूँ. अच्छा. चाहे फिर वो सोनीपत में हो, चाहे फिर वो दिल्ली में हो, स्विट्जरलैंड हो, दुबई हो, चंडीगढ़ हो. ठीक है, मतलब हर तरीके की मैंने पढ़ाई कर रखी है. तो मतलब देसी भी, ठेठ भी, सब कुछ, अंग्रेजी भी, यू नेम इट, यूरोपियन भी. एग्जैक्टली. और हर जगह से ना मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है. और कभी भी ना मेरा गेम प्लान नहीं था कि मैंने क्या करना है लाइफ में.
आई स्टिल रिमेम्बर मैं 11th में थी और मैंने कॉमर्स चूज किया क्योंकि मुझे मजा आता था कॉमर्स के बारे में पढ़ने में, अकाउंटेंसी, ऑल्दो मुझे नंबर्स पसंद नहीं है बट फिर भी मुझे मजा आता था। और मैंने एक टर्म सुना एंटरप्रेन्योर, मैंने कहा यार दिस इज सो टफ टू प्रोनाउंस बट इट्स सो नाइस द मोमेंट यू से इट ना। फ्रेंच, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज बहुत पसंद है बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्विट्जरलैंड आई वाज इन मॉन्ट्रो। ना लड़कियों को फ्रेंच लड़के भी पसंद है। नहीं, इस केस में आई वुड लाइक टू डिफर। हाँ हाँ, तो मैंने एंटरप्रेन्योर सुना तो मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है। फिर बोलते रतन टाटा, किसी ने एग्जांपल दिया, वो मतलब नहीं समझा पाए। मैंने कहा तब तो मुझे एब्सोल्युटली यही बनना है। तो तब से मैंने सोचा कि ठीक है करना है। फिर डैड का सपना था कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं या इंडियन फॉरेन सर्विसेज, सो आई प्रिपेयर्ड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज आल्सो फॉर 5 years ऑफ माय लाइफ, गुड 5 years। 2015 में आई अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू आल्सो, so I was a nerd also at one point of time। हाँ, तो फिर उसके बाद then I went to Switzerland, studied hospitality, luxury management और entrepreneurship। Obviously मुझे मिल गया कि इंडिया में तो कोई पढ़ा नहीं रहा है, बाहर पढ़ा रहे, let's go there। लक्ष्य मुझे बोला मेरे को ये करना। हाँ, मुझे ये करना है। तो बेस्ट ऑफ द स्कूल ग्लियॉन में गई, वहां पर मैंने पढ़ा। फिर आई ट्रैवल्ड ऑल्सो बहुत ज्यादा, तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट था। तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला, एक्सपीरियंस मिला कि अच्छा ठीक है, लग्जरी माइंडसेट क्या होता है। लग्जरी इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। लग्जरी होता है कि अप्रिशिएटिंग द फाइनर थिंग्स इन लाइफ, एंजॉइंग द स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ। तो ये सब चीजें मुझे समझ में किया, मुझे ऐसी लाइफ लीड करनी है जो कि मैं खुद डिक्टेट कर सकूं कि मुझे किस तरीके से लाइफ चाहिए। सो एज अ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप मैं दुबई गई। आई वर्क विद ग्रैंड हायत, जिसको हयात भी बोलते हैं हम लोग, मुझे भी बाद में पता चला इट इज हायत। वो अभी दीपेंद्र गोयल का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहना मैं नहीं बताना कि जोमेटो है या जोमेटो है। हाँ, मैं Zomato। हायत है या हायत है। हाँ, तो इट्स US ब्रांड, तो मुझे तब पता चला। तो जब मैं फ्रंट ऑफिस में थी, मैं बहुत ही मजे आते थे मुझे। तो चेक इन जब लेने होते थे ना, तो सब बोलते थे कि ओ गॉड दीप्ति, एक चेक इन करेंगे हम 10 कर लेंगे, क्योंकि जब मैं शुरू हो जाती तो लाइक आई हैव दिस हैबिट ऑफ कनेक्टिंग ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल ना। मैं पर्सनल रिलेशनशिप बहुत बनाती हूँ क्लाइंट्स के साथ। तो आज भी जो मेरे क्लाइंट्स है ना, उनको मैं इन्वेस्टमेंट करवाती रहती हूँ गुड़गांव में, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज एवरलास्टिंग। तो ये सब होने के बाद आई केम बैक टू इंडिया। तो मैंने कहा क्या करना है मुझे, आई डोंट नो। तो मैंने डैड को बोला कि डैड रिजॉर्ट स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल इंटेंसिव, कि आपको लैंड खरीदनी पड़ेगी, CLU करवाना पड़ेगा, फिर सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल जॉइन रियल एस्टेट। तो मैंने डैड को ज्वाइन किया एंड ही इज अ सेल्फ मेड मैन। तो मैंने उनको देखा है कि कैसे उन्होंने ग्रो किया। तो वो हमेशा से ना, वो एथोस और वैल्यूज थे कि हार्ड वर्क हमेशा से करना है, ड्रिवन, पैशन। तो मैंने देखा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड करना है, स्ट्रीमलाइन करना है, थोड़े प्रोसेसेस और सिस्टम्स लेकर आने हैं। तो मैंने स्टार्ट किया हाई राइजेस से। फिर मैंने देखा मेरे क्लाइंट, जैसे आई वाज टेलिंग यू आल्सो ऑफ कैमरा, कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है बिल्डर फ्लोर्स की। तो मैंने कहा रहे तो मुझे आइडिया ही नहीं है, और गेटेड का कैसे करेंगे, तो प्रॉप सोल्यूशन में भी नहीं होता। सो आई रिमेम्बर आई वुड ड्राइव इन माई होंडा सिटी, गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठेकेदार, राइट। तो उनसे मैं बात करती थी, अच्छा मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करती थी, एंड दिस इज हाउ आई क्लोज फ्यू डील्स ऑल्सो। और अब बिलीव मी, मुझे इतने अच्छे क्लाइंट्स मिले। शाउट आउट टू माय फीमेल क्लाइंट्स, बहुत ही अमेजिंग। मतलब उन्होंने कभी मुझे परेशान नहीं किया कि हाँ नहीं ये दिखाओ वो दिखाओ। वो अपने पार्ट पे ना अपना होमवर्क करके बैठते थे कि दीप्ति मुझे ये चाहिए, अब आप इसमें अपनी एनर्जी लगाओ। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 6 months ऐसे आए कि यार कुछ काम ही नहीं हो रहा था, टीम नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा ओके, व्हाट टू डू, आई हैव लॉट ऑफ फ्री टाइम। तो मैंने सोचा मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी अभी भी बड़ी क्रिंजी वीडियोस है इंस्टाग्राम पे। मैं फ्रंट कैमरा ऑन करके ग्लास वाटर, पानी का ग्लास लेके फ्रंट कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार एवरीबडी इज सेलिंग प्रॉपर्टीज, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द नॉलेज और द इन्फॉर्मेशन। वो तो मिसिंग है। कितने लोगों का पैसा डूब गया है, क्या सही बिल्डर है, क्या गलत बिल्डर है, चाहे वो ग्रेड ए डेवलपर क्यों ना, तो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, माहिरा होम से मैंने एक वीडियो बनाई। उनके 5 प्रोजेक्ट्स थे। 5 प्रोजेक्ट्स मींस कितने सारे इन्वेस्टर्स थे। तो इट गॉट वायरल, वहां से ट्रैक्शन आना शुरू हुआ। और फिर उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक, राइट। फिर उसके बाद तो बस चढ़ाइया ही चढ़ाइया थी। एंड देन $1 million इंडिया हैपेंड। फिर आई वाज वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट कि हाँ यार, दे रीच्ड आउट टू मी कि ऐसा ऐसा कोई शो आ रहा है। मैंने कहा व्हाई नॉट, मतलब पूरे इंडिया में से आप 6 लोगों को चूज कर रहे हो, एंड विद गॉड्स ग्रेस कि यार आई एम वन ऑफ द हैंड पिक्ड रियल्टर्स, व्हाई नॉट। तो बस उसके बाद तो फिर आप देख ही रहे हो। और $1 million लिस्टिंग में क्या होने वाला है वो आपको हर फ्राइडे देखना है 8 बजे, राइट।
मैं तो Yeah. देख ही रहा हूँ, मैं सबको हाँ. एडवाइस करूंगा जो हाँ. जो जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखें, हम्म. और जो स्नीक पीक क्या आपको एक रियलिटी में, एक रियल टाइम में आपको पता लगेगा कि एक रियल्टर की लाइफ क्या होती है। बट अभी कॉन्वर्सेशन में आगे चलते हैं, हाँ. प्रमोशन बाद में करेंगे। हाँ. ट्रू ट्रू. तो बाकी वो जो आपने फीमेल क्लाइंट वाला बोला, यार ये तो मेरे को सीखना पड़ेगा कि मेरे को कोई कुछ नहीं कहती थी। हाँ. ये हृदय परिवर्तन कहाँ से आया? क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार इनको कैसे, ये तो समझ गए, इनको तो ये तो अपने ही है। हाँ, हाँ. जो मेल है इनकी डिमांड कैसे समझ? देखो फीमेल का ना मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होता है फीमेल क्लाइंट से मिलना, बिकॉज मुझे क्या लगता है ना, जो डिसीजन मेकर होती है ना वो फीमेल होती है। तो मैं प्राइमरी विजिट भी किसी को करा रही हूँ ना, मैं उनको पहले बोल देती हूँ, मैंने कहा आपकी लाइफ में आपकी मदर या बेटर हाफ कोई है ना, प्लीज उनको लेकर आओ। आई गेस आई विल बी एबल टू कनेक्ट विद देम बेटर, और रादर दे वुड बी एबल टू कनेक्ट, बिकॉज आई कैन कनेक्ट विद एनीवन टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने कहा उनको लेकर आओ, एंड आई नो शी इज गोइंग टू कॉल द शॉट्स, सो लेट्स सेव एवरीबॉडीज टाइम एंड एफर्ट। और इस तरीके से होता चला गया, एंड बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। मतलब कि देखो आज के टाइम में ना बहुत सारे लोग हैं, दे वांट टू रीच आउट आल्सो कि दीप्ति वी वांट टू जॉइन रियल एस्टेट, ठीक है, यू आर लाइक अ रोल मॉडल, ठीक है, तो हमें एंटर करना है। और आप हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। बिलीव मी, आई हैव फ्रेंड्स, दे हैव स्टडीड फ्रॉम यूएस एंड यूके, उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बोलते हैं यार ये क्या कर रहे हो, रियल एस्टेट कर रहे हो। तो फिर वो बोलते हैं नहीं दीप्ति, आई कैन गिव योर एग्जांपल टू देम एंड देन शो देम कि ठीक है, रियल एस्टेट इज आल्सो अ ग्रेट चॉइस व्हेन इट कम्स टू करियर। तो अभी हाँ इससे क्वेश्चन आता है कि वैसे तो पिछले अगर मैं 7-8 साल में देखूं तो काफी चेंज आया है रियल एस्टेट में इन टर्म्स ऑफ द सेक्स रेशो, कि भाई पहले बहुत कम होता था, अब बढ़ गया है। तो डू यू फील दैट लिटिल बिट ऑफ अवर्स बिहेवियर अभी भी है, या कोई चैलेंजेस हैं, या फिर अब बेटर हो गई है इंडस्ट्री? देखो मेरे लिए बहुत इजी होगा ये बोलना कि हाँ यार फीमेल हूँ, बहुत टफ हुआ है, ये नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट कहीं जगह हुआ है, बट मुझे लगता है लोग ज्यादा हेल्पफुल है। अच्छा कि यार फीमेल इसको थोड़ा टफ हो सकता है तो वो हेल्प करते हैं। लाइक मेरी सेम फ्रेटर्निटी के लोग ब्रोकर्स, वो बहुत हेल्प करते थे। अच्छा दीप्ति आप नहीं आ पाओगे, जैसे को लिस्टिंग्स होती है, आप नहीं आ पाओगे, हम मैनेज कर लेंगे। क्लाइंट्स भी लाइकवाइज ना बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कभी भी मुझे ना कोई ऐसा नहीं है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, कई बार मैं 7-7 बजे तक भी विजिट्स पे रहती हूँ। तो इसमें मेरे डैड भी सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड भी समझते हैं कि भाई ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, टू बी ऑनेस्ट। बट मैं ना ऐसे नहीं बोलूंगी कि लाइक एवरीबडी हैज बीन सुपर नाइस टू मी, बहुत हेल्पफुल रहे, वो अंडरस्टैंड करते हैं, दे आर ट्रू जेंटलमैन एंड शिवलरस आई बिलीव। कुछ थे ऐसे, और हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, बिलीव मी। वो तो हर वो आपको पता होना चाहिए कि किसको साइड लाइन करना है, किसको नो बोलना है, इतनी समझ है आप में कि आप हाँ साइड लाइन कर सकते हैं। हाँ वो तो आई थिंक एवरी वुमन हैज गॉट दैट सिक्स्थ सेंस, मतलब आप मिलते हो किसी से, उसको देखते हो तो शायद पहली बार में नजर की जरूरत नहीं है, वाइब से ही आइडिया लग जाता है कि ये बंदा सही है या गलत। और आप चाहे मुझे 2% ब्रोकरेज दे दो, बट आपकी वाइब ठीक नहीं तो मैं आपके साथ काम ही नहीं करूंगी, मुझे ऐसा धंधा चाहिए ही नहीं। करेक्ट करेक्ट। बाकी आपने बोला कि यार मैं तो उनको बोलती हूँ वाइफ को लेके आओ, ये बात मैं कैसे फोन पे बोलूं कि सर वाइफ को जरूर लेके आना। अब मेरा तो गलत मैसेज वाइफ को बोलना कि हस्बैंड को लेकर। हाँ हाँ हाँ, वैसे हालांकि सोर्स ऑफ कंफर्ट आएगा। हालांकि अब एक चीज मैंने चेंज देखा, जैसे पहले मोस्टली लोग जो है ना वो खुद फोन करते थे, अब उल्टा हो गया है, वाइफ पहले फोन करती है और फिर बोलती है कि मेरे हस्बैंड बात करेंगे। देखो जो सबसे बड़े डिसीजन होते हैं ना घर के, वो हमेशा वाइफ ही लेती है। घर कौन सा लेना है, घर में आज क्या बनेगा, आप कहाँ जाओगे, जो छोटे छोटे डिसीजन है लाइफ के, कि इलेक्शन क्या होगा, आगे लाइफ में क्या करना है, गोल्स क्या है, वो छोटे छोटे डिसीजन आप पे छोड़ दिए जाते हैं। बड़े डिसीजन वाइफ के पास बड़े डिसीजन she calls the No shots. matter you are putting money for investment, ultimately घर वापस जाके पूछना आपने उन्हीं से है कि यार पसंद आया नहीं। हाँ तो अगली बार से मैं बोलूंगा कि सर ऐसा है, वाइफ से बात करा दो, आपसे बाद में बात करूंगा। देखो वाइब मैच करनी चाहिए उस टाइम पे। वाइफ से वाइब मैच करनी चाहिए। नहीं वो भी पड़ जाएंगे। मतलब वैसे जोक्स अपार्ट, ये आप धारणा मानिए कि इंडिया में जितना मर्जी हम इस चीज को बोलें कि मेल डोमिनेटेड है, ये सारी, विदाउट अ लेडीज प्रेजेंस ना कोई घर कभी खरीदा गया है, ना कभी किसी घर में पूजा हुई है, ना कभी उस घर के खरीदने के डिसीजन हुए हैं। तो आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट है उस लेडी का आपके उस डिसीजन को बैकअप करना, क्योंकि आपको भी वो सेंस ऑफ अप्रूवल चाहिए कि मैं ये ठीक कर रहा हूं। भले ही वो मदर है, भले ही वो वाइफ है, भले ही वो डॉटर है,
इट कुड बी एनीबडी, बट यू नीड दैट सेंस ऑफ अप्रूवल कि ये आपके लिए करा है या हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे के लिए करा है, बट क्या ये सही है या नहीं है, क्योंकि आप उसको कमर्शियल एंगल से देखोगे। जो लेडीज हैं या घर की वो हैं, मदर हैं, वो उसको इमोशनल एंगल से देखेंगे कि ठीक है बच्चों का कमरा ये होगा या किचन के अंदर इस तरीके से। तो वो बहुत सारा आप कह लीजिए कोलैबोरेटिव एफर्ट है उस चीज को पूरा करना। और मैं बिलीव करता हूँ कि देख, एक मेरे आर्मी के क्लाइंट, मतलब वेरी सीनियर गाय, और मतलब कितने लोग तो रिपोर्ट करते होंगे, उसने कहा देख ऐसा है, वाइफ जो है ना, मतलब 50 चीजें मैं नहीं मानता, लेकिन जो बड़ी चीज है ना, जो तेरी वाइफ कहे ना, चुपचाप कह के कर लियो। मेरे को हमेशा उस चीज में फायदा हुआ है कि मैंने कहा ये लेना है, मतलब बड़े डिसीजंस में उसने कहा ये नहीं ये ले लो, तो मुझे हमेशा फायदा मिला। तो मैं सी क्या था कि मैं अर्ली स्टेज से ही, जैसे मैंने लीजिंग भी शुरू करी, तो आई वाज लकी कि भाई एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी यू आर मीटिंग द सीएफओ ऑफ द कंपनी। तो हर क्लाइंट, चाहे वो सीनियर था जूनियर था, मैं सवाल पूछता हूँ बड़े। तो ऐसे, क्योंकि उससे फिर मेरी लर्निंग बहुत बढ़ी। अब आपसे भी सवाल ही पूछ रहा हूँ और आज वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ. तो बड़ा फायदा मिलता। तो उन्होंने भी यही बात बोली कि they've got a sense, और कोई सिक्स्थ सेंस है जो ऊपर से उनको दी गई है, तो आप उनकी सुनो। Their view is holistic. आप इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है और मेरा मानना ही है दे आर हायर बीइंग। Oh yes, we blessed that way. उसमें कोई दो राय नहीं है। Nee, and on the same note, I remember one of my client, I was showing him one of the apartments golf link. तो मैंने सारा दिखा दिया, उनको बहुत पसंद आया, मुझे लग रहा था कि वो टोकन भी दे देंगे आज। तो मैंने कहा अच्छा what do you think? मैंने कहा देखो हाउस इज वास्तु कंप्लायंट also. He said दीप्ति भाड़ में गया वास्तु कंप्लायंस, मुझे अपना घर मेरा वाइफ कंप्लायंट चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है उनको लेकर आओ प्लीज। ठीक है, तो ये तो मतलब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो अब इक्वलिस्टी हूं मैं। So now we will move to the next topic, which is that सबसे ये मेरा एक सवाल है कि what do you see in Indian real estate happening in next 5 years? How it is going to move, especially luxury real estate, and how are you going to take advantage of the trends and you are going to make good fortunes for yourself? मुझे लगता है आज से अगर हम आगे 5 साल कंपेयर करें, उसके लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जो 4 साल से ट्रेंड चलता आ रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स द लग्जरी सेगमेंट जो बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा, आई थिंक वो कंटिन्यू करेगी। बिकॉज अब लग्जरी सिर्फ और सिर्फ शौक नहीं रह गया, अब ये आदत बनती जा रही है, और जो चीज आदत बन जाती है उसके लिए फिर आदमी और आगे इवॉल्व करता है। अब ये एवोल्यूशन और आगे बढ़ेगा, और उसकी वजह से लग्जरी सेगमेंट स्पेसिफिकली आप देखेंगे बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल लेवल पे आगे लेके जाएगी इस चीज को। कमिंग बैक टू हमारे क्या प्लान्स हैं उस चीज को लेके, बहुत सिंपल सीधी चीज, अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि लग्जरी घर बनना चाहिए, तो उस तरीके का प्रोडक्ट आप अल्टीमेटली मार्केट में बनवाएंगे या बनता हुआ देखेंगे और उसी को आप सेल ऑफ करेंगे। जैसा कि एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको बहुत छोटा सा, अभी तक एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी जहां पे हर फ्लोर में स्विमिंग पूल हो इन साउथ दिल्ली, बट नाउ आई हैव 2 प्रोजेक्ट्स इन व्हिच एवरी फ्लोर विल हैव इट्स ओन प्राइवेट स्विमिंग पूल। तो ये अब ये लग्जरी का सेगमेंट है, तो ये इससे पहले नहीं था, अब ये है। अब शायद इसके बाद हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हों कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट इस साइज का हो कि जहां पे पर्सनल चॉपर की प्रेफरेंस आ जाए। तो ये वो सारी चीजें इवॉल्व होंगी और आपको उस चीज का बहुत फायदा मिलने वाला है, बिकॉज लग्जरी वुड ऑलवेज कम विद बिगर मनी मींस बिगर सर्विस चार्जेस। तो उसके लिए स्ट्रैटेजाइज बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट केटर टू द डिमांड जो जनरेट कर रही है मार्केट। अगर आप वो डिमांड सही टाइम पे पकड़ सकते हैं, आप बिल्कुल धारा के साथ निकल जाएंगे। ग्रेट, मतलब बिल्कुल जो आपकी बात सुन के जो मेरे को मजा आया वो आया कि एक होता ना कि ग्राउंड एंड स्पेस दोनों के बीच की बात जी। एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि हाँ दिस इज मतलब बेसिकली दिस इज हाउ रियल एस्टेट वर्क्स। मैं कई बार बोलता हूँ कि रियल एस्टेट का काम जो है ना वो धूल में लाठी मारने वाला काम, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। 100% करेक्ट। तो उसका कोई फंडा नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ काम नहीं कर सकते। हर ताला अलग, हर ताले की चाबी अलग। तो ये हमारे उसमें बिल्कुल फिट बैठता है कि जो हुआ वो ऊपर वाले की मेहनत, ऊपर वाले की किस्मत से, उसने जो आपको किस्मत दी है, आपकी मेहनत उसके अंदर सिर्फ 20% का रोल प्ले करेगी। जी। ये बहुत स्ट्रैटेजाइज्ड कह लीजिए, जो मर्जी स्ट्रैटेजी आप प्लान करिए,
बट अगर ऊपर वाले ने आपके सिर पे हाथ रखा है तो आप नेक्स्ट लेवल अपने आप पहुंच जाएंगे, कुछ ज्यादा स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। करेक्ट। ये मैं जो यंग रियल्टर्स हैं, जो यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ये मैं उनको भी बताना चाहूंगा, क्योंकि लोग सी जैसे जुनून का धंधा तो ये है, पैशन के बिना यहाँ कुछ कर नहीं सकते, बट आई थिंक जो आपने बोला कि गुड कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट, 101%। तो आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बोला 20-30 एज एन इन्वेस्टर एज वेल। मैंने देखा है कि 60-40 का रेशो रहता है कि 60% एनालिसिस है, 40% आपका लक है कि वो प्रॉपर्टी आपको कहाँ ले जाएगी। बिल्कुल है सर, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर मैं एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करता रहूं एग्जाम्पल तौर पे, बट उस प्रोडक्ट का एनालिसिस गलत है या वो मार्केट रेट से ज्यादा है, तो दिन में है तो 24 घंटे ही ना काम करने के लिए, मैं तो 24 घंटे गिन रहा हूँ, हालांकि है कम भी, बट है तो उतने ही घंटे ना। तो या तो आप एनर्जी एक सही प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं या एक गलत प्रोडक्ट पे लगा के वेस्ट कर सकते हैं, तो वहां एनालिसिस बहुत काम आता है। बट एज आई सेड, यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मेहनत से घबराना नहीं इज द बेसिक कोर फंडा। बिकॉज अब आप सीखना शुरू करेंगे तो एक सर्टेन लेवल तक आकर आप इतना सीख जाएंगे कि आप फिल्टर आउट करना सीख जाएंगे कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Agreed, agreed. This is what you learn with time. यस, और उसका कोई जल्दी का फॉर्मूला उसकी कोई कुंजी नहीं है सर, उसके लिए टेक्स्ट बुक है, वो पूरी पढ़नी पड़ेगी। आप ठीक कह रहे थे, हिंदी जबरदस्त है। दुरुस्त है सर, दुरुस्त है। तो अंकुश जी, अब आप सेम क्वेश्चन आपसे है, मतलब क्योंकि सबके बारे में जानना जरूरी है, तो व्हाट इज योर थॉट? आप एक अलग तरीके से चीजों को देखते हैं, मतलब थोड़ा और एम्पिरिकली देखते हैं, जैसे ही इज अ मैन ऑफ वाइब and feelings and emotions. 100%. You are a man of numbers and predictions and analytic analysis. Of course, he also does that, but मैं भी सेम हूँ सर। मेरे को अगर किसी प्रॉपर्टी की वाइब समझ में आती है तो मैं बेचता हूँ, अगर नहीं समझ में आती तो नहीं बेचता। सर आप चाहोगे भी नहीं बेच पाओगे अगर वाइब नहीं समझ में आई तो, कन्विक्शन ही नहीं आएगा। करेक्ट। और यही मजा है पॉडकास्ट का कि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते हैं। बिल्कुल। कौन किससे जुड़ पाता है, किसको क्या सीखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यू। So I'll tell you in a very basic way. I'll make you understand this. आज से 4 साल पहले जो अफोर्डेबल था वो स्लाइटली अफोर्डेबल हो गया, स्लाइटली अफोर्डेबल एंट्री लेवल लग्जरी हो गया, एंट्री लेवल लग्जरी हो गया, और लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी हो गया। उसके ऊपर तो आप मतलब एक ट्रॉफी प्रॉपर्टीज की तरफ आप चले जाएंगे, राइट? द वे वी हैव सीन द मार्केट स्पेसिफिकली इन इंडिया, जो पूरी की पूरी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी थी मार्केट की पिछले 4 साल की, जैसे हेम भाई ने भी बताया आपको, मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा आपको। HNI has played a biggest role in investing into luxury real estate in India. कम से कम $13 बिलियन का निवेश, क्लोज टू अबाउट 1.25 लाख करोड़ HNI का था इंडिया के अंदर। अब उसका 60 से 65% अल्ट्रा लग्जरी साइड के अंदर दिल्ली NCR मार्केट का अपना स्टेक है। अब आप देख सकते हैं ये मार्केट पिछले 4 साल में किस ट्रैजेक्टरी पे मूव किया है। अब आप अकेले 2024 का पहला हाफ ईयरली देख लीजिए, वो 23,500 घर अल्ट्रा लग्जरी अकेले बेचे, जो डबल है 2023 के मुकाबले। लेकिन व्हेन वी सी द मार्केट द वे इट इज मूविंग अहेड, आपके पास अफोर्डेबिलिटी, स्लाइट अफोर्डेबिलिटी और लग्जरी साइड पे कोई इन्वेंट्री नहीं बची है, एंड मार्केट ग्रोथ भी बहुत हाई रेट के ऊपर हुआ है। आने वाले टाइम में ऑन द रेजिडेंशियल साइड आप देखेंगे कि जो वो एक्सक्लूसिव घर हैं, जो सेकेंडरी सेल मार्केट के अंदर हैं, सिर्फ वही अवेलेबल होंगे और इन्वेस्टर्स से वो एंड यूजर्स की तरफ जाएंगे। देयर वोंट बी द सेम ट्रैजेक्टरी, बट इन द नेक्स्ट 3 to 5 years एक हल्का सा स्टैग्नेशन पॉइंट आएगा, राइट? वो एंड यूजर मार्केट आ जाएगी। नाउ टू पिवट ऑल ऑफ दिस, वी आर फोकसिंग मोर ऑन टू दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर एक्सक्लूसिव इन नेचर, नॉट इन द प्राइमरी मार्केट, बिकॉज प्राइमरी मार्केट का जो माल है वो ऑलरेडी सेकेंडरी मार्केट में है। यू हैव टू फोकस एंड गेट द एंड यूजर इन दैट मार्केट एंड डू द डील नाउ। जो अप्रिसिएशन लेनी थी वो प्राइमरी मार्केट के इन्वेस्टर ने ऑलरेडी ले ली। आई एग्री। मैं कई बार बोलता हूं कि देखो, रियल एस्टेट को एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है, बट वही जो शुरुआत में बोला था, खरीदेगा कौन? ये स्टॉक मार्केट तो है नहीं कि हाँ एंड यूजर की। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स में एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर ने खरीद लिया, बट इवेंचुअली प्रोडक्ट का एंड यूजर ड्रिवन होना जरूरी है। तो वही वाली चीज है, तो एंड में खरीदेगा तो एंड यूजर ही, तो बड़ा अप्रिसिएशन एंड यूजर ही देगा। नाउ वी विल मूव टू दीप्ति। सो सेम क्वेश्चन,
कि what do you feel how the industry will move in next 5 years and what is your strategy to take an advantage of that? सो अगर मैं बात करूँ फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट की, तो लाइक एज राइटली सेड बाय हेम बत्रा कि कोविड के बाद अब लोगों की एपिटाइट बढ़ गई लग्जरी रियल एस्टेट के टुवर्ड्स, जहां पर लग्जरी नॉट इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज या फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, हम स्पेस की बात कर रहे हैं, हम साइज की बात कर रहे हैं, ओपननेस ग्रीननेस की बात कर रहे हैं। तो ऑल द डेवलपर्स आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो वो सब फोकस क्या करते हैं कि हमारे इतने टावर्स है, लो डेंसिटी है, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ध्यान हमने दिया है बेटर क्लब हाउसेस देने पे, स्पोर्ट्स एरिना देने में और ग्रीन स्पेसेस देने में। चाहे फिर हम वो आर्टिफिशियल लेक्स की बात कर लें या गोल्फ कोर्सेज की बात कर लें, तो ये ना एक बहुत ही आम बात हो गई है। पहले बोलते थे नो वी आर द ओनली वन प्रोवाइडिंग दिस, बट अब सब करने लगे हैं बिकॉज यू हैव टू मैच द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स। और अगर हम बात करें गुड़गांव रियल एस्टेट के पर से, तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने ना ये मार्केट बड़े राइटली चूज किए, क्योंकि आज आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल और रिपोर्ट जिसमें ये बोला गया कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ग्रोथ है वो समवेयर बिटवीन 15 to 22% है व्हेन वी टॉक अबाउट हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद। बट गुड़गांव की इट इज मोर देन डबल, इट इज 57% ग्रोथ इन द प्राइजेस। सो यू कैन इमेजिन कि किस ग्रोथ इंजन का पार्ट है हम। और एज अंकुश ऑल्सो सेड कि अफोर्डेबिलिटी जैसे जैसे मतलब अब मूव ऑन करते जा रहे हैं हम। Correct. पर मुझे इससे एक चीज अच्छी भी क्या लगती है, जैसे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वो अनअफोर्डेबल होती जाएंगी, इसका मतलब है कि ग्रोथ इंजन शिफ्ट होता जाएगा टुवर्ड्स टियर 2 और टियर 3 सिटीज। Satellite mean- cities की तरफ. एग्जैक्टली, तो विच इज ऑल्सो गुड फॉर द इंडियन रियल एस्टेट पिक्चर ऑन अ ब्रॉडर लेवल, राइट। और अब मैं एक और नई चीज जो देख रही हूँ वो है ग्रोथ ऑफ डेस्टिनेशन होम्स। आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है हॉलीडे Correct. होम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आई एम ऑल्सो थिंकिंग, आपने बोला ना कि आप कैसे टैप करेंगे, हाँ. तो मैं आई एम थिंकिंग अबाउट गोवा रियल एस्टेट ऑल्सो, जबकि मैं अभी भी कर रही हूँ डीएलएफ का बहुत बढ़ चढ़ के मैं कर रही हूँ, एंड देयर आर अदर प्राइवेट डेवलपर्स ऑल्सो। सो गोवा रियल एस्टेट आई एम फोकसिंग ऑन। देन अगर हम हिल स्टेट्स की बात करें, अंकुश इज कमिंग अप विद रियली अमेजिंग प्रोजेक्ट इन कसौली। Right, I've seen that on website. या I do my study. हाँ, तो मैं उसके लिए भी पम्प्ड अप हूँ बिकॉज ये सब काम करेंगे और हमारे लिए भी फायदा होगा। सो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। और बात करें इंडियन रियल एस्टेट की, लाइक टेकिंग इट फॉरवर्ड, तो आई वाज आल्सो रीडिंग अबाउट इट कि 2030 5 इयर्स जैसे आपने बोला, लाइक 6 इयर्स $1 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। सो इमेजिन द पोटेंशियल इट हैज in terms of the career also, in terms of the investors also. और अगर हम इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो इट्स नॉट ओनली डोमेस्टिकली ड्रिवन, अब बाहर से लोग आना शुरू हो गए। सो मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स आर एनआरआईज, पीपल फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग। तो मेरा गेम प्लान एक तो यही होगा कि ऑब्वियसली आई हैव टू टैकल द लग्जरी मार्केट बिकॉज आई हैव स्टडीड लग्जरी मैनेजमेंट, आई अंडरस्टैंड द लग्जरी माइंडसेट, आई एम द राइट फिट फॉर इट। दूसरा, मैं डेस्टिनेशन होम्स मार्केट को केटर करूंगी। और तीसरा ये है कि 2-3 साल बाद आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ एंटरिंग इनटू ओवरसीज मार्केट ऑल्सो, बिकॉज आई हैव कनेक्ट्स, राइट कनेक्ट्स, तो उसको क्यों ना टैप करे, राइट। इंडिया का टैलेंट भी वर्ल्ड वाइड जाना चाहिए, Correct, correct. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने एंटरप्रेन्योर वर्ड सीखा था ना, तभी मैंने देखा था फोर्ब्स मैगजीन आती है, अच्छा. और मुझे हमेशा से ना अपना नाम चाहिए फोर्ब्स मैगजीन के कवर पे, पेज पे। आई वांट माय पिक्चर, यू नो, लाइक ऑन द फोर्ब्स कवर मैगजीन, लाइक women entrepreneurs to look for. हाँ, मैंने वो वाली रील भी देखी है, मैनिफेस्टेशन वाली. Yes, yeah. Fantastic. Yeah. What an inspiration. Yeah, मतलब like- I love people who believe in the art of manifestation because और ये होता है actually, it happens. Yeah. So I wish you luck for that. Thank you so much. और now I would like to conclude this entire podcast. I know you guys had a busy day. Nobody knows what time we are shooting right now, but it's a very difficult time to shoot Yeah. this video. Huh. And I would love and I would urge everybody to watch the series and watch it till the end and comment in the comment section below कि आपको सभी कैरेक्टर्स के बारे में क्या क्या और जानना है, ताकि अगर मेरे को फ्यूचर में कोई पॉडकास्ट करनी हो तो उनके साथ हम दोबारा बुला सके। मुझे लोगों के साथ नए नए पर्सपेक्टिव जानने में मजा आता है, तो इन लोगों को अगर समय मिला, इनके पास में होगा तो जरूर दोबारा बुलाएंगे। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी जानना चाहते हैं, वो आप डालिए। मैं सबके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स के। दे वुड पर्सनली cater to that and they will answer to your Yeah. queries. But before we wrap, I just want to say something like hats off to your energy. I know it is very late. हम time नहीं बता रहे, but it's late. We are tired and I believe so are you. But it was a great energy in the room, and I am happy to be sharing the other couch with two gentlemen here, and you are amazing host.
So happy to be here. Honored. I'm Thank you honored. so much. Yeah. Thank you so much. Yeah. It was great. Yeah. So chaliye, thank you so much for watching. If you've watched it till here, don't forget to subscribe to our channel, hit the bell icon, and we will be ready with the next podcast soon. Thank you. Fantastic.